Jai Swaminarayan everyone. Good morning to you all. Today I am going to discuss something that is related to limitation in concept of economic development. आर्थिक विकास के कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी मर्यादाएं होती हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी है जो इससे थोड़ा एक्सक्लूड होती है. So this topic is there in 12th standard commerce and it is related to second unit of economics. So the first limitation in concept of economic development is it will not show the human progress. Yes, economic development is showing the development of a nation. It is showing the development or progress that is related to the nation only. And it shows the economic scenario, but it will not disclose the human progress or the development that is related to the human. That is why it will not be considered as an indicator of human progress. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर नेशन से जुड़े हुए डेवलपमेंट को दिखाता है, जो डेवलपमेंट किसी तरह से नेशनल इनकम के पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने पर या फिर नेशनल इनकम के इंक्रीज होने पर होता है या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है. लेकिन आप इसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो आप इसे एक इंडिकेटर की तरह नहीं ले सकते जो ह्यूमन प्रोग्रेस को दिखाता है. सेकेंड पॉइंट इज इट कैनॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. यस, economic development is not being able to be measured as economic growth. ऐसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, उस तरह से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है that is related to the output, the increase in the extent of output which is connected to the national income or per capita income. कितना पर कैपिटा इनकम या फिर कितना आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कनेक्टेड है. जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल डेवलपमेंट या फिर जो भी सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है उससे रिलेटेड है. इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर पाना इतना आसान नहीं होता. सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट is not being able to be measured as economic growth because it is connected with the development that is taking place in the society. So the second demerit of this or second limitation in the concept of economic development is that it cannot be measured as economic growth. Third point is related, it will not state the standard of living of people. Yes, it is generally being considered that if the economic development is taking place, then there will be upliftment in the standard of living of people. But in the country like India, you cannot state that, or you can see that the economic development is there, but the development in the standard of living of people is not seen in much proportion. तो आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया जैसी कंट्री में तो हो रहा है विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड विद द चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बट द चेंज विच इज नेसेसरी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन इंडिया, दैट इज नॉट सीन इन मच प्रोपोर्शन विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है, लेकिन जो भी अपलिफ्टमेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल में आना चाहिए या फिर जो भी यहाँ के लोगों के रहन सहन के तरीके में आना चाहिए उतना डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा. तो आप ये नहीं कह सकते, यू कैन नॉट स्टेट दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो सकता है. So these are the 3 demerits or limitations that is of
concept, or that is there in the concept of economic development. The first limitation was that it will not indicate the human progress, or it will not show the human progress which should have to be there in economic development. If the economic development is taking place, the human progress is also a part of the economic development of a country. It should have to be included, but you cannot state that the economic development is showing the human progress also, because it is generally showing the progress of a nation. Second point is, it cannot be measured as economic growth. Okay, it is not easy to measure the economic development because it is not only connected with the extent of output, or it is not generally taking into consideration only the increase in per capita income and national income. Third point is, it will not state the standard of living of people. Yes, you cannot say that, or you cannot state that economic development will lead to the improvement in standard of living of people. Yes, thank you. Today I'm going to discuss about the difference between economic development and economic growth. This topic is there in 11th standard economics, in this 12th standard economics, and it is related to unit 2. So, first of all, what is the difference between this economic development and economic growth? Economic development is a process and economic growth is a result, or you can say it is a occurrence. So, economic development को एक process कह सकते हो या एक procedure कह सकते हो जिससे कि आप अपने countries में कुछ favorable changes देखते हो, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक occurrence है, एक आउटकम है कि जो भी प्रोसीडिंग्स आपके कंट्री में इन्फ्लुएंस हो रही है उसका. सो द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली कनेक्टेड विद द आउटकम और द result of the change that is taking place in production, or which is taking place in the proportion of national income or per capita income. While the economic development is a process that is giving the quantitative and qualitative changes to a country, or that is related to the quantitative and qualitative changes or favorable changes that is taking place in a country. तो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फेवरेबल चेंजेस कंट्री में लाया जाता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जनरली आउटकम से रिलेटेड है, और जो भी चेंजेस आउटकम में आते हैं या फिर जो भी चेंजेस इकोनॉमिक में प्रोडक्ट के इंक्रीज, प्रोडक्ट और सर्विस के प्रोपोर्शन के इंक्रीज में आता है, उससे जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ कनेक्टेड है. So because of, you can state that because of the economic development, economic growth is prevailing, or the change is being there in the proportion of national income or in the proportion of products and service in a country. Next point is, in economic development, the question related to utilization of unutilized resources arises. Yes, economic development can take place if the unutilized resources, that can be man, machine, material, or any other resources are being utilized in a proper way. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होता है जब जहाँ वो भी संसाधन जो होते हैं, जो ह्यूमन हो सकते हैं, जो मनी हो सकता है, जो किसी तरह का मटेरियल या इक्विपमेंट हो सकता है, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा हो तो. जबकि दूसरी तरफ economic growth is related to distribution of resources. Yes, how the resources are being distributed unevenly for the production or in order to increase the outcome. तो यहाँ पे economic growth जो है
वो किस तरह से रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उससे कनेक्टेड है, जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके या फिर गुड्स और सर्विसेज को इंक्रीज किया जा सके। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव चेंजेस है दोनों इंक्लूड होते हैं। जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है वो आउटकम से रिलेटेड है और जो क्वालिटेटिव चेंजेस है वो है ड्यू टू रिसर्च। इफ देयर इज सम इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट देन यू कैन टर्म इट एज अ क्वालिटेटिव चेंज। यानी कि क्वालिटेटिव चेंज जो होता है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है या फिर चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसको आप क्वालिटेटिव चेंज कह सकते हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज दोनों इंक्लूडेड होते हैं, दोनों का समावेश होता है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो जनरली प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। कितना प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज और कितना एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम में आ रहा है, या फिर कितना इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हो रहा है, इससे रिलेटेड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप ये कह सकते हो इट इज मेनली इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है मींस किसी चीज के क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है उससे जुड़ा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली इंक्लूड्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस। फोर्थ पॉइंट इज दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। यस, जो कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है वो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीडिंग थोड़ा इम्प्लीमेंट हो रहा है इसलिए। तो जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलेंगे। या फिर आप कह सकते हो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जनरली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दोज कंट्रीज वेयर द डेवलपमेंट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, एंड दिस economic growth is generally related, or this concept of economic development growth is related to developed countries। तो जो developed countries होते हैं उनको इंक्लूड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादातर आपको डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा। So the concept of economic growth generally take into consideration those countries which are good in terms of economic growth. So these are the points that I have discussed with you, and you need to take into consideration this point while explaining the thing that is related to economic development and economic growth. पहला point था economic development is a process। इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग्स आती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। While economic growth is an occurrence, इसे आउटकम या रिजल्ट से ज्यादा कंसिडर किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी आउटकम या रिजल्ट आता है उसको ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो ये एक तरह का आउटकम या रिजल्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द क्वेश्चन it is taking into consideration the utilization of unutilized resources। अगर जो रिसोर्सेस है जिनका कभी यूटिलाइजेशन नहीं किया गया उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, मींस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जो प्रोडक्शन और आउटकम को इंक्रीज करने के लिए जरूरी होता है। तो अगर रिसोर्सेस को ठीक तरीके से प्रोडक्शन या आउटकम को इंक्रीज करने के लिए सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी पॉसिबल। तीसरा पॉइंट ये था इट इंक्लूड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। यस, जो भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं उनकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो तीसरे पॉइंट में
क्वांटिटेटिव चेंजेस आर ओनली बीइंग कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस, कितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, उसी को बस इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिडर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, वो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज को ध्यान में रखकर प्रेजेंट किया जाता है, और जो भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है वो जनरली उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इन दैट आई विल स्टार्ट विद दिस फिफ्थ पॉइंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैनॉट बी मेजर्ड इजीली एज इकोनॉमिक ग्रोथ, while the economic growth can be measured easily। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जनरली मेजर करना इजी नहीं होता, क्योंकि ये सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं उसको इन्वॉल्व करता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना आपके लिए इजी रहता है, बिकॉज इट इज जनरली कनेक्टेड टू द आउटपुट, और इट इज कनेक्टेड टू द इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस। तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको मेजर करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ये जनरली आउटपुट से रिलेटेड है, और कितना इंक्रीज प्रोडक्शन या गुड्स और सर्विसेज में हो रहा है उससे रिलेटेड है। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंपैरिजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना इजी होता है। It is a slow process. This economic development is a slow process, but it is difficult to maintain. It is a slow process which cannot be maintained in an easy way. तो यहाँ आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक स्लो प्रोसीडिंग होता है, जिसमें फेवरेबल चेंजेस, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चेंजेस आते हैं, it requires some time to take place or to be implemented. That is why it is being considered as a slow process. And economic growth is a rapid process. In comparison to the economic development, the economic growth is being considered as a rapid process because it is just connected to the extent of increase that is taking place in the production or in the increase of goods and service of a country. तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो काफी हद तक सिर्फ कितना आउटकम में इंक्रीज होता है उससे रिलेटेड है। इसलिए जो भी इंक्रीज गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपैरिजन में फास्ट होता है। So if the production is taking place fast, then the economic growth will also be considered as a rapid process or a fast process in comparison to the economic development. It is related to distribution along with increase in per capita income. Yes, how the resources are being distributed and how the per capita income will be increased, that thing is being considered in economic development. जब economic development की बात होती है तो किस तरह से resources को allocate किया जा सकता है और किस तरह से per capita income में increase upliftment हो सकता है, उससे जुड़ी हुई चीजें ध्यान में ली जाती है। While as in economic growth, it is just related to the extent of increase in per capita income. तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तब पॉसिबल होता है जब जनरली आउटकम में किसी तरह का इंक्रीज हो रहा हो, या फिर आप कह सकते हो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। Yes, if the production is not taking place in a proper way, if there is no increase in the goods and service by the help of new technology, then the economic development is not possible. तो अगर goods और services के proportion में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होती तो आप ये कह सकते हो कि एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा भी पॉसिबल हो सकता है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस और इफ द कंट्री इज एबल टू प्रोवाइड द डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल। तो अगर कोई भी कंट्री अपने पीपल यानी अपने लोगों को डाइवर्स इकोनॉमिक गुड सप्लाई करने के लिए कैपेबल है लॉन्ग रन के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि दे आर हैविंग दिस इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके लिए ज्यादातर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इफ दे आर वेदर दे आर एबल टू सप्लाई द गुड्स और डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल फॉर द लॉन्ग रन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी पॉसिबल हो सकता है, ये दिखाया गया है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी तरह के इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो वंस अगेन आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस पोर्शन इन अ शॉर्ट मैनर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस तरह आप इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हो उस तरह से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, नॉट जस्ट द आउटकम। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जस्ट इट इज रिलेटेड टू द आउटकम ओनली, दैट वाई इट इज इजी टू मेजर। क्योंकि ये बस आउटकम से रिलेटेड है, इसलिए इसको मेजर करना इजी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंपैरिजन में। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। यस, इसमें कई सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग्स होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग इज देयर, बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ slow process which takes some time, while economic growth is a rapid process that will take place with the increase in the production of goods and service as well as with the increase in per capita income of a nation. It is related to distribution along with per capita income. Yes, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन और पर कैपिटा इनकम दोनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज टेकिंग प्लेस, या फिर किस तरह से रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाता है और कितना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जस्ट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम और इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को रिकॉर्ड करता है या फिर उसे ही को कंसीडर करता है। और आपका लास्ट पॉइंट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, अगर किसी तरह का इंक्रीज या अपलिफ्टमेंट पर कैपिटा इनकम या फिर किसी तरह का अपलिफ्टमेंट या इंक्रीज गुड्स और सर्विसेज में नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बगैर भी पॉसिबल हो सकता है इफ जो भी कंट्री है वो अपने पीपल को डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो तो, और वो भी इन द लॉन्ग रन। लंबे समय के लिए अगर कोई कंट्री अपने पीपल को अपने लोगों को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल होते हैं तो आप कह सकते हो इफ वेदर दे आर डेवलप्ड और नॉट दे आर हैविंग मीन्स दे ऑक्यूपाई द इकोनॉमिक ग्रोथ। उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो है जिससे कि वो अपने कंट्री के लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू।